A very popular or very famous verse that you can find in Jeremiah chapter 29 and verse 11. और एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध वचन है जो आप ढूंढ सकते हैं यिर्मयाह उसका 29 और उसके 11 में। So we'll read from verse 10 to 14. तो हम 10 से लेके 14 वचन तक पढ़ेंगे। I'll read first. और पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, इंग्लिश में पढ़ूंगा। This is what the Lord says, when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my good promise to bring you back to this place, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I'll be found by you, declares the Lord, and will bring you back from the captivity. I will gather you from all the nations and places where I banished you, declares the Lord, and will bring you back to the place from which I carried you into exile. यिर्मयाह 29 उसका 10 से यहोवा यूँ कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूँगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊँगा पूरा करूँगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा और यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊँगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल लिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की वाणी है। We'll read one more verse from the New Testament, Philippians chapter 1, letter of Paul to Philippians chapter 1 and verse 6. Verse 6, again this is another very famous verse. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. और फिलिपियों 1:6 पढ़ेंगे, मुझे इस बात पर भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। Okay, before we pray, I want to thank Pastor Pankaj for giving me this opportunity to share the word. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful gathering here. And Lord, we pray that you will bless us today with your word. Speak to our hearts, Lord. Transform us, change us, and so that, Lord, we will become a vessel into your hands for the extension of your kingdom and for your glory. We thank you for this church. Thank you for Pastor Pankaj and his family. Thank you for all the leaders and the people who are here, Lord. Continue to bless this church, and Lord, pray that you will bless their ministry of discipling not only to the locals but also to the nations. Lord, let this community grow and multiply for your glory. In Jesus' name we ask this prayer. Amen. Okay, so the title that I have given to this message is a very short title called A Hope and a Future. और जो मैंने शीर्षक दिया है इस वचन को आज बहुत छोटा सा, एक आशा और एक भविष्य। It's from Jeremiah 29:11, a hope and a future. और यिर्मयाह 29:11 से है एक आशा और एक भविष्य। Here we need to understand the background of this particular verse 11. और हमें यहाँ पे इस 11वें वचन का पृष्ठभूमि को पहले समझना होगा। Because many times we can take the word out of context. क्योंकि कई बार हम जो वचन है उसके संदर्भ के बाहर से ले लेते हैं। And then we try to apply it to our lives. और फिर हम उसे अपने जीवन में उपयोग करने की कोशिश करते हैं। Somebody said a text without pretext is a text without context is a pretext. और वो कहता है कि जो वचन है बिना संदर्भ के वो बस एक बिना मायने का वचन है। So if you look at the background of this letter, और अगर आप इसका पृष्ठभूमि बाद में देखेंगे, the history tells us that King Nebuchadnezzar of Babylon attacked Jerusalem and destroyed it completely.
और यहाँ पे हम देखते हैं इतिहास में जो नबूकदनेस्सर राजा थे उनने बेबीलोन पर हमला किया और इजराइलियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। The temple was also destroyed. उनका जो मंदिर था वो भी तहस नहस हो गया था। The temple of Jerusalem was completely destroyed. और जो यरूशलेम का मंदिर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। There was dust and ashes over Jerusalem. वहाँ सिर्फ धूल और राख थी यरूशलेम में। Most of the people were taken captives. और बहुत सारे लोग बंधुआई में ले लिए गए। King Zedekiah was taken captive. और जो राजा ज़ेदेकिया हैं उनको भी बंधुआई में ले लिया His गया। 2 sons were killed right in front of his eyes. और उसके 2 बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। And his eyes were gouged. और उनकी जो आंखें थी वो निकाल ली गई थी। And when the land is completely barren, और जो पूरा जो भूमि है वो बांझ हो गई थी। there is famine and sickness and poverty and death everywhere. और वहाँ पे गरीबी थी और सूखापन था और मृत्यु थी हर जगह। If you know this music band called Bonnie M, अगर आप इनको जानते हो जिनका नाम है बॉनी एम, they were very popular in 1980s and beyond. और वो 1980 के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। And they wrote a song based on Psalm 137. और उन्होंने एक गाना लिखा था भजन संहिता 137 के It's still ऊपर। very very famous song. और वो बहुत ही प्रचलित गीत है। By the rivers of Babylon. वो है बाय द रिवर्स ऑफ बेबीलोन। And that was taken from Psalm 137. और वो इसी भजन से लिया गया था। And it was in this context that Psalm was written. और इसी संदर्भ में वो गीत लिखा गया था। And in this context, just imagine when there is death, violence, there is sickness, there are ashes everywhere, the whole city of Jerusalem is destroyed, temple is no more, all the good people are taken captives, only the people who are sick and suffering are left behind. और वो वहाँ पे जहाँ पे मृत्यु थी, बीमारी थी, हर तरीके से हर चीज़ तहस नहस हो गई थी। अच्छे लोगों को बंधुआई में ले लिया गया था और जो लोग सिर्फ बीमार थे और गरीब थे उनको वहाँ छोड़ दिया गया था। You know, once this city was full of prosperity, wealth, worship, success and strength, now lying in ashes. और वो वहाँ पे एक समय बहुत ही ज़्यादा बहुतायत थी, चीज़ों की आराधना थी, लोग सफल थे और वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी। In this context, the word of the Lord comes to the people, to his people. और इस समय पे इस संदर्भ में परमेश्वर का वचन आता है उसके लोगों के पास। And that is verse 11 from Jeremiah 29. और वो यिर्मयाह 29:11 में से है। For I know the plans that I have for you. वो कहता है मैं जानता हूँ जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं। Plans to prosper you, not to harm you. तुम्हें उन्नत करने के लिए, ना कि तुम्हें चोट पहुँचाने के लिए। Plans to give you a hope and a future. कि तुम एक ऐसी योजना है जो तुम्हें एक आशा और एक भविष्य देगी। So today we are going to talk about God's plan. तो आज हम परमेश्वर की योजना के बारे में बात करेंगे। So let's talk about 3 plans. तो हम यहाँ पे 3 योजनाओं को देखेंगे। Let's say plan A, पहले हम कहेंगे प्लान ए, plan B, प्लान बी and then we have plan C. और फिर हमारे पास तीसरा प्लान है प्लान Let's सी। call plan A as God's plan. और प्लान ए को हम कहेंगे परमेश्वर की योजना। Let's call plan B as human plan. और हम प्लान बी को कहेंगे मनुष्य की योजना। But there's also one more plan, पर वहाँ एक और योजना है and that's called plan C, और वो है प्लान सी, and it's a devil's plan. और वो है शत्रु की योजना। How does this work? और ये सब कैसे कार्य करता है? In Proverbs chapter 29 and verse 11, और नीति वचन 29 उसके 11 में लिखा है, many are the plans in the heart of a person, और कहता है बहुत सी योजनाएं हैं एक मनुष्य के हृदय में, but whatever God has planned will prevail. पर सिर्फ परमेश्वर की जो इच्छा है वो पूरी होती है। So how many plans we have? तो हमारी कितनी योजनाएं हैं? According to Proverbs 29, उन नीति वचन 29 के अनुसार many बहुत plans. सारी, Many plans. बहुत सारी योजनाएं। But God also has a plan. पर परमेश्वर की भी एक योजना But है, Satan also comes up with a plan. पर जो शत्रु है वो भी एक योजना के साथ But we आता need to है। understand पर हमें ये समझने की जरूरत है how these plans work. पर कैसे ये योजनाएं काम करती हैं। God's plan परमेश्वर की योजना is risky,
बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है uncertain, और हमें पता नहीं होता क्या होगा, dangerous, और बहुत ही खतरनाक होती है confusing, और बहुत ही हमें असमंजस में डाल देती है impossible, और बहुत ही असंभव लगती है invisible, और हमें दिखाई नहीं देती absurd, और हमें समझ ना आए शायद, hidden, और छुपी हुई, costly, बहुत ही कीमती sovereign, और संप्रभुता के साथ and unchangeable. और बदली नहीं जा सकती। God's plan will never ever change. परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदल Do सकती। whatever you can, but God's plan will not change. आप कुछ भी कर लीजिए, परमेश्वर की योजना को नहीं बदल Then, सकते। according to Proverbs 19:21, sorry, I think I gave a wrong reference. It's 19:21. Proverbs और वो नीति 19:21. वचन 19 उनका 21 में है ये वचन। Many are the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. और बहुत सी योजनाएं होती है एक मनुष्य के हृदय में, पर वो परमेश्वर की इच्छा है जो अंत में पूरी होती So है। we also come up with many plans. तो हम भी बहुत सारी योजनाओं के साथ आते हैं। You know, we want to do this, we want to do that, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। and we come up with many good plans. हम बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं के साथ There's आते हैं nothing wrong with coming up with plans. और कुछ गलत नहीं है योजनाओं के साथ There's आना, absolutely nothing wrong with planning anything. और कुछ भी योजना बनाने में कुछ भी गलत नहीं But है, all the time we have to remember it is God's plan that will prevail. पर अंत में हम याद रखें वो परमेश्वर की इच्छा है जो सबसे ऊपर पूरी होगी। And then sometimes Satan will come and speak into your ears और कई बार शत्रु आपके कानों में आके बोलेगा, because you are already planning. क्योंकि आप पहले से योजना बना रहे He'll हैं। say, "Oh no, this is not really good plan. I'll give you another plan." वो कहते हैं नहीं नहीं, ये अच्छी योजना ही है, मैं तुम्हें दूसरी योजना And many देता हूँ। times we listen to him, और कई बार हम उसकी सुन लेते हैं, but he's a thief. पर वो एक चोर है। He's come to kill and to steal and to वो destroy. आपको मारने, घात करने और चुराने आया है। So that's why we have to be very careful. तो हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। Let me give you 2 examples from the Bible and then we will move forward. और मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा वचन में से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। It is the example of Moses in the Old Testament. पहले हम पुराने नियम से मूसा का उदाहरण लेंगे। When during the time of Moses, when Moses was born, जब मूसा का जन्म हुआ, King Pharaoh has already sent a decree or a declaration saying that all Hebrew male child will be killed. और जो फिरौन था उसने ये घोषणा कर दी थी कि जितनी भी यहूदी पुरुष जो बच्चे थे उनको मार दिया जाएगा। So all the male children were already supposed to be killed. तो जितने भी पुरुष संतानें थी उन सबको मार दिया जाएगा, ये बोला गया। Do you remember the story of midwives Pua and Shipra? और आपको याद है जो देखते थे बच्चों को, पुआ और शिब्रा के बारे में? Now that's another story, वो दूसरी कहानी है, but it is happening during that time. पर ये उसी समय पे हो रही थी। Just when the king or emperor has made a declaration, और जब जैसे ही फिरौन ने वो घोषणा करी, वो आज्ञा दी, this woman becomes pregnant. ये जो स्त्री है वो गर्भवती होती है। Now she's scared to death. अब वो डरी हुई है What kind of child will be born? कि ये सोच के कि किस लिंग का संतान उत्पन्न होगी, A boy or a girl? एक बेटी या बेटा। How sad, those days the male child were supposed to be killed. और कितना दुखद होगा उस समय जो पुरुष संतानें थी उनको मारने की आज्ञा दी। Today it is changed. आज बदल चुका है, But those days they wanted to kill all the male babies. पर उस समय वो जितनी भी पुरुष संतानें थे उन सबको मारना चाहते थे। And the boy is born. और उसका बेटा होता है। God had a plan for Moses. पर परमेश्वर की एक योजना थी मूसा के लिए। But Pharaoh made another plan for Moses. पर जो फिरौन है उसने दूसरी योजना बनाई। Let's call that God has a plan for Moses called Plan A for Moses. और हम सोच सकते हैं शायद मूसा के लिए परमेश्वर की ये इच्छा थी, प्लान ए। What was God's plan for Moses? और परमेश्वर की क्या योजना थी मूसा के That लिए? one day that he will deliver his people from the hands of the enemy. और उसकी योजना ये थी कि वो एक दिन जो शत्रु है उसके चंगुल से अपने लोगों को निकाल के लाएगा। Even before he was born, God had a plan. इससे पहले कि वो जन्म लेता परमेश्वर की एक योजना थी। To cut short the story, I'm not going to give you all the और description. मैं कहानी को अगर जल्दी से बताऊं,
You know, Pharaoh tried to kill him. और फिरौन ने उसको मारने की कोशिश की। Imagine the mother taking that little baby, और आप सोचिए वो माता अपने छोटे से शिशु को लेकर जा रही थी, weaving a basket by her own hands, जो उसने क्या कहते हैं टोकरी बनाई अपने खुद के हाथों से, leaving the baby in the water, और फिर पानी में अपने बेटे को छोड़ दिया, not sure whether this baby will survive. ये जानते हुए कि पता नहीं ये जीवित रहेगा या But नहीं। God ordered all the steps. पर परमेश्वर ने सारे कदम चुन रखे थे। Pharaoh's daughter came right at that time. और फिरौन की बेटी उसी समय आई, She sees the basket. वो उस टोकरी को देखती है She calls for it. और उसको मंगवाती है। Moses' sister is hiding behind the tree. और मूसा की जो बहन है वो पेड़ के पीछे छुपी देख रही होती है। Amazing story, right? और बहुत ही अद्भुत कहानी है। And हाँ? who nurtures this baby? और कौन उसको बड़ा करता His है own पालकर? mother. उसकी माँ। And where is Moses growing now? और वो बच्चा कहाँ बड़ा हो रहा है? In the palace of the same king. और उसी महल में उसी राजा के। It's amazing. ये कितना अद्भुत है। You know, God had a plan for Moses, और परमेश्वर की एक योजना थी मूसा के लिए, but you know, Pharaoh made a plan B for him. और फिरौन ने उसके लिए दूसरा प्लान बी बनाया था, Moses had some other और plans, शायद मूसा की अलग योजनाएं होंगी, and they failed. और वो सब असफल रहीं। But eventually, पर अंत में God sent him to Egypt and delivered his people. और परमेश्वर ने उसे मिस्र भेजा और अपने लोगों को छुड़वाया। So in the meantime, पर उस पूरे समय में lot of drama happened. बहुत सारा ड्रामा हुआ, Same thing can happen with you and me also. और शायद आपके और मेरे साथ भी ये हो सकता A है। lot of drama will happen. बहुत सारा ड्रामा होगा, Lot of tragedies will happen. बहुत सारी दुखद घटनाएं होंगी, You will fall down. आप गिरेंगे, You will fail. आप असफल होंगे, Many difficult times that you will have to face. और शायद बहुत ही मुश्किल समय आपको गुजारना But पड़े। remember one thing. पर एक चीज याद रखें, God's plan will always prevail. परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होती है। Let's take another example from the Old Testament. और हम दूसरा उदाहरण लेंगे पुराने नियम से, Joseph. यूसुफ। You know, God wanted him to become the prime minister of Egypt, और परमेश्वर चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने ये but मिस्र his का, brothers made plan B, पर उसके भाइयों ने दूसरा योजना बनाया। and they said, let's kill him. उसने सोचा कि इसको मार देते What हैं, happened? पर क्या हुआ? He was not killed. पर वो उसे मार नहीं पाए। You know the entire story, right? और आप पूरी कहानी जानते हैं। हाँ, From being sold as a prisoner or as a slave, he became a prisoner. वो एक गुलाम से एक बंधुआई में चला गया, Finally went to palace, और अंत में वो महल में and पहुंचा, one day he became the prime minister of Egypt. और एक दिन वो प्रधानमंत्री बन गया मिस्र का। That's what he says to his brothers. और यही चीज वो अपने भाइयों से बोलता है When they finally meet him, जब वो अंत में उससे मिलते he हैं। says, you intended to harm me, उन्होंने कहा तुम्हारी इच्छा तो मुझे but चोट पहुंचाने की but थी, look what God has done. पर देखो क्या परमेश्वर ने मेरे लिए God किया। changed everything. परमेश्वर ने सब बदल दिया। Jonah, यूना, think what was God's plan for Jonah? और योना के लिए परमेश्वर की क्या योजना थी? Go to Nineveh and preach the word. कि नीनवे जाओ और वचन का प्रचार करो, And Jonah never wanted to go there. पर योना वहां जाना ही नहीं चाहता था, Finally, he had to go. पर अंत में उसे जाना ही पड़ा, God's plan will always prevail. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी होती है। So we have to take heart and be encouraged that God has a plan for us. तो आप उत्साहित रहिए, जानते हो कि परमेश्वर की एक योजना है हमारे लिए। But the problem with God's plan is, पर जो दिक्कत है परमेश्वर की योजना के as साथ, I said, it is many times we don't understand. कि वो कई बार हम उसे समझते नहीं हैं, It is invisible sometimes. और कई बार अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। Very difficult to know whether it is God's plan or what. बहुत ही मुश्किल है जानना कि परमेश्वर की इच्छा है भी या नहीं। So how does God's plan unfold? तो कैसे परमेश्वर की योजना पूरी होती है? I'll give you 5 stages by which it unfolds. और मैं आपको बताऊंगा 5 तरीकों से कैसे परमेश्वर की इच्छा पता चलती है। Stage number 1 is a stage of confusion and darkness. पहला स्तर है, हमें बहुत ही असमंजस होता है, हम अंधकार की स्थिति में आ जाते हैं। Isaiah 55 verse 8 and 9 says, और Isaiah? यशायाह 55 उसका 8 and 9. 8 और 9, For my thoughts are not your कि thoughts, जो मेरी सोच है वो तुम्हारी सोच नहीं है, neither are your ways
my ways declares the Lord. और ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग है, ऐसा परमेश्वर का So वचन what is कहता है। God telling you and me? तो परमेश्वर आपको और मुझे क्या बताना चाह रहा है He's saying that your thoughts are not my कि thoughts. तुम्हारी जो सोच है वो मेरी सोच नहीं है, Your plans are not my your ways are not my ways. तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग जैसे नहीं है, Your ideas are not my ideas. और जो तुम्हारे आइडियाज है वो मेरे आइडियाज जैसे नहीं है, Your logic is not my logic. और जैसा तुम सोचते हो वैसे मैं नहीं सोचता। I don't see the way you see it. जिस तरीके से तुम देखते हो वैसे मैं नहीं देखता हूँ, You know, I don't listen to things the way you listen to it. और मैं ना चीजों को वैसे सुनता हूँ जैसे तुम सुनते हो। So we are very different. तो हम बहुत अलग हैं, That's why many times we are not able to understand God's plan. और तभी हम कई बार परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। Stage 2, और जो दूसरा स्तर है, let's call that as no visible answer stage. और वो एक ऐसा समय है जहां आपको स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं दिखाई देता, Maybe the help is coming, it's on the way, और शायद सहारा आ रहा हो, शायद अपने रास्ते पे हो but सहायता, you don't see anything. पर आप देख नहीं सकते, So that's called a waiting stage. और वो हम कहते हैं इंतजार करने का समय। How long you have to wait? और आपको कितना इंतजार करना है, Prayers are not answered. और शायद हमारी प्रार्थना का उत्तर ना There's मिल a रहा हो, long silence. और बहुत समय तक परमेश्वर चुप हो, Nothing is happening. कुछ नहीं हो रहा हो। Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Does He really care for me? क्या वो मेरी चिंता भी करता है? I have been fasting and praying. मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ, I have been asking Lord to help me. और मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ मेरी मदद के Nothing लिए, moves. पर कुछ नहीं होता। So what do I do? तो मैं क्या करूँ? Wait. इंतजार करें। Stage 3, और तीसरा स्तर it's called more wait. वो है और इंतजार, You have to wait more. और इंतजार करना पड़ता है आपको, You have to wait more. और आपको शायद और ज्यादा इंतजार करना पड़े, You know, because the answer is not coming. क्योंकि उत्तर अभी नहीं आ रहा है। How long did David wait? दाऊद ने कितना इंतजार किया? They say when he was anointed, he was about 15 years वो old. कहते हैं कि जब उसका अभिषेक किया गया वो सिर्फ 15 साल का था, When he became king, he was 30 years old. और जब वो राजा बना तो वो 30 साल का था, And then he ruled over Israel for 40 years. और फिर उसने इजराइल के ऊपर राज किया 40 साल, And then he died. और फिर उसकी मृत्यु हो गई। So how long did he live? तो उसने कितनी इंतजार किया, How long did he live? और कितने समय बाद वो गया? 15 plus 15 plus 40 is 70. कम से कम 70 साल। I sometimes imagine David died at 70. आप सोच सकते हैं दाऊद 70 की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, But David had to wait. पर उसे इंतजार करना पड़ा। Joseph had to wait. यूसुफ को इंतजार करना पड़ा, Long wait. बहुत लंबा Are इंतजार। you going through this stage right now? और आप शायद इस स्तर से गुजर रही You may हो, be saying, but I've been waiting for 3 years. तो आप कह रहे हो शायद मैं 3 साल से But David इंतजार कर had रहा to हूँ, wait for 15 years. तो शायद आपको 15 साल इंतजार करना पड़ा। Jesus was waiting for 30 years. यीशु मसीह ने 30 साल इंतजार किया, So there is a more wait and prayer. फिर और ज्यादा इंतजार और प्रार्थना का समय होता है। And then we have fourth stage called, where God's plan starts unfolding. और जो फिर चौथा स्तर होता है जहाँ धीरे धीरे उसकी योजनाएं खुलनी चालू होती हैं, And you have the way, you have the help on your way. और फिर आपके लिए सहायता आती है। But many times, पर कई बार the help that comes is from an unexpected sources. पर जो सहायता आती है वो शायद ऐसी जगह से आई हो जहाँ से आपने उपेक्षा ना की हो। So God helps you in a very unexpected way. तो परमेश्वर आपकी सहायता बहुत ही ऐसे उपेक्षा न रखी हुई जगह से करते हैं। And the last stage 5, और जो 5वां स्तर है let's call it as a testimony stage. वो है गवाही का स्तर, Because now you are standing and witnessing before the people और अब आप लोगों के सामने खड़े होकर गवाही दे पा रहे हैं that finally God has answered your कि prayer. अंत में परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया। So God's plan unfolds in these different stages. और परमेश्वर की योजना ऐसे ही अलग अलग स्तर से पता But चलती है। remember, God has a plan. पर आप याद रखें परमेश्वर की एक And योजना that है, plan is plan A. और वो है प्लान ए। God will never have plan B. परमेश्वर के पास कोई प्लान बी नहीं We होता। talk about plan B. हम प्लान बी के बारे में सोचते They हैं, talk in the businesses about plan B. हम शायद व्यवसाय में प्लान बी के बारे में Even the सोचते हैं, church leaders talk about plan B. शायद कलीसिया के अगवा प्लान बी के बारे में बात God करें, never talks about plan B. पर परमेश्वर कभी प्लान बी के He बारे में has नहीं one सोचता। plan. उसका एक ही योजना है And no one can stop that. और कोई उसे नहीं रोक सकता। So God has a plan. तो परमेश्वर की एक योजना है, I don't know what plan God has for you. और मुझे नहीं पता परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। I was born in a big city called Akola in और Maharashtra. मैं कोला नाम के एक बहुत बड़े शहर में महाराष्ट्र में पैदा हुआ, Today it is a very big city. और अब एक बहुत बड़ा शहर है वो।
But we lived in a house in those days. We lived in a house where we had lots of place. और हम एक ऐसे घर में रहते थे जो इतना बड़ा था, वहाँ पे बहुत जगह थी। Just behind my house was 100 acre of the field. और मेरे घर के पीछे 108 एकड़ की एक बहुत बड़ी जमीन थी, खेत था। And they were growing cotton. और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, रुई उगाते थे। Because black soil very good for cotton. क्योंकि जो काला जो खाद होती है वो बहुत ही अच्छी होती है रुई के लिए। And many years later, और बहुत साल बाद, I was still very young in those days. और मैं बहुत जवान था उस समय में। One day we heard that there is a train that is going to come through the fields. और किसी ने कहा कि जो क्या कहते हैं, जो ट्रेन है वो हमारे खेतों से गुजरेगी। Because they laid the tracks. तो उन्होंने ट्रैक्स डाले We were watching all that happening. और हम वो पटरी चलता हुआ देख रहे थे। Watching a train come once in a week और हम देखते थे पहले जो ट्रेन है वो एक बार आती थी हफ्ते में। was very fascinating. हमारे लिए बहुत ही अद्भुत था वो देखना, Because we didn't see the train those days. क्योंकि उस समय हम ज़्यादा ट्रेन नहीं देख पाते थे। So I used to go in the field. तो मैं खेत में जाता था We knew the day on which it will come और हमें पता था किस दिन पे ट्रेन आएगी, and the time that we knew. और हम समय भी पता था। And then I'll go and stand in the field. और मैं जाके खेतों में खड़ा होता था। Like me, there will be definitely many children. और मेरी तरफ बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। And I look at the train और मैं ट्रेन की ओर देखता था। and I will pray little in my little heart. और मैं अपने हृदय में प्रार्थना करता था Lord, one day I want to become an engine driver. कि मैं एक दिन मैं इंजन चलाने वाला बनना चाहता हूँ। Please, Lord. मुझे इंजन ड्राइवर बनाए। Do Please, whatever कुछ you can. भी आप करें, पर मुझे वो बनाए। I want to be railway engine driver. कि मैं रेलवे इंजन का ड्राइवर ही बनना चाहता Prayed हूँ। for many years. और बहुत साल तक मैं ये प्रार्थना करता रहा Never worked. और वो कभी काम नहीं आई। Have you gone through such experiences in your life? क्या आप ऐसे अनुभवों से गुजरे हैं अपने जीवन में You plan something, कि आप योजना बनाते then हैं you किसी चीज़, start praying, फिर आप प्रार्थना करना and शुरू you करते pray and pray, हैं और आप प्रार्थना करते and you हैं wait and wait. और आप इंतजार करते All हैं your plans fail. और फिर आपकी सारी योजनाएं रद्द हो जाती हैं। This is how God works. और ऐसे ही परमेश्वर कार्य But करता we है। must thank God पर हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना because चाहिए, ultimately God's plan has worked. क्योंकि अंत में परमेश्वर की योजना पूरी होती है, Not your plan and my plan. ना कि आपकी और मेरी योजना। Because that's why God has a plan and plan to prosper you, not to harm you. क्योंकि परमेश्वर के पास जो योजना है वो आपको बढ़ाने की है, ना तो आपको चोट पहुंचाने की। So how do we respond now to God's when things are like this? तो जब चीजें ऐसी होती है तो हम परमेश्वर की ओर क्या प्रत्युत्तर दें? I'll give you 3-4 things और मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगा very important that I have learned in my life, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैंने अपने जीवन में सीखी है, and I hope it will be useful to you और also. मैं आशा रखता हूँ कि आपके भी उपयोग में आएगी। Number 1, पहला, our relationship with God is not based on understanding, but it is based on trust. परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो हमारी समझ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. परमेश्वर के ऊपर अपने पूरे मन से भरोसा रखें और ना कि अपनी समझ का सहारा लें। So we cannot understand God. तो हम परमेश्वर को नहीं समझ We may सकते be able to understand a little bit about Him, और शायद हम बहुत थोड़ा उसके बारे में समझ but to पाए, understand God पर परमेश्वर को समझना is just beyond our capacity. वो हमारी काबिलियत से भी बहुत बढ़कर है। So many times you will not understand. तो कई बार आप परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे, Most of the times you will not understand. ज्यादातर समय आप परमेश्वर को नहीं समझ What do पाएंगे। you do? तो आप क्या करेंगे? Trust in the Lord. परमेश्वर पे भरोसा But रखें। God, I have this problem. पर परमेश्वर मुझे ये परेशानी है। And God says, yes, I know. परमेश्वर कहते हैं हाँ मुझे So पता है, what should I do? तो मुझे क्या करना चाहिए? Every time God will say, trust in me. हर बार प्रभु यही कहेगा मुझ पे भरोसा रखो। But God, this problem is not going. पर परमेश्वर ये परेशानी जा ही नहीं रही है। And God will say, yes, I know it is not going. परमेश्वर कहे हाँ मैं जानता हूँ नहीं जा रही But है। Lord, I've been waiting for a long time. परमेश्वर मैं बहुत समय से इंतजार कर And the रहा Lord हूँ। says, yes, I know you're waiting for और the long परमेश्वर time. कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम बहुत समय इंतजार But कर when रहे will I हो। get married, Lord? पर कब मेरी शादी होगी प्रभु? When will I get a job? कब मुझे नौकरी I have मिलेगी? been waiting. मैं इंतजार ही कर रहा And हूँ। every time God will say, yes, I know this. और हर बार प्रभु कहेगा हाँ मैं जानता हूँ ये बात, Trust in me. पर मेरे पे भरोसा रखो। Just trust in me. बस मुझ पर भरोसा रखो। You know, trusting God आप जानते हैं परमेश्वर पर is भरोसा like रखना sitting on the chair. वो एक कुर्सी पे बैठने के समान Now, है, all of you are sitting on the chair, और आप सब कुर्सी पर बैठे हैं right? It's हाँ? very comfortable. और ये बहुत ही आरामदायक है You don't need any energy or extra energy to sit on the chair. और आपको ज्यादा किसी ऊर्जा या एनर्जी की जरूरत नहीं है उस पर बैठे रहने के लिए। But have you tried
sitting without a chair? पर आपने कभी कोशिश की है बिना कुर्सी के बैठने की? How funny that will be, right? वो कितना मजाकिया लगेगा। How long will you sit? और आप कितनी देर तक उस जगह पे बैठे रहेंगे? When you go home, try that, okay? अगर आप घर जाएंगे तो आप एक कोशिश करिए। Imagine there is a chair here और आप सोचे कि यहाँ पे एक कुर्सी है and you want to sit. और आप उस पे बैठना चाहते हैं, So how will you sit? तो आप कैसे You बैठेंगे? will sit like this, right? आप ऐसे बैठेंगे? How long? कितनी देर तक आप ऐसे बैठ You सकते हैं? cannot. आप नहीं बैठ सकते। That's the difference between understanding God and trusting God. और यही फर्क है परमेश्वर को समझने में और परमेश्वर पे भरोसा रखने When you में। sit on the chair, जब आप कुर्सी पर बैठते हैं it's like you're relying on the Lord, तो आप परमेश्वर पे निर्भर हैं, ऐसा लगता है, fully trusting in Him. उस पे पूरा भरोसे के साथ। So that's where Proverbs 3:5-6 says, "Trust in the Lord with all your heart, lean not on your own और understanding." यह नीति वचन 3:5-6 कहता है कि परमेश्वर पे पूरे मन से भरोसा रखो और अपने समझ का सहारा ना लो। Second thing that I've learned, और जो दूसरी चीज मैंने सीखी है, God always works one day at a time. और परमेश्वर हर दिन हर चीज छोटी छोटी हर एक दिन के अनुसार करता है। He never. That's why when He taught us that prayer, Lord's Prayer, तो जब उसने हमें ये परमेश्वर के लिए प्रार्थना करना सिखाया हमें, where He said, "Give us today our daily bread." जब उसने हमें सिखाया कि हमें आज की रोटी आज दे, He never said, "Oh," He never taught us to pray, "Give us today our bread for 1 year." उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि आज हमें रोटी दे 1 साल के लिए। That's where the manna only came in the Old Testament every morning. और इसलिए मन्ना हर सुबह पुराने नियम में हर सुबह आता था They had to go and collect it that morning. और उन्हें उसी सुबह जाके उसे इकट्ठा करना So होता था। God always works one day at a time. इसलिए हर एक चीज परमेश्वर हर एक दिन के अनुसार करता है। That's why Jesus said in Matthew 6:34, तो ऐसे ही परमेश्वर मत्ती 36 उसका 34 में बोलता है, 6:34. 6:34 में बोलता Do है not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. कि कल की चिंता ना करो क्योंकि कल अपने लिए स्वयं चिंता करेगा। So if you are worrying for tomorrow, तो अगर आप कल की चिंता कर रहे it's हैं not going to help. तो कुछ नहीं होने Just वाला, leave it to the Lord. आप परमेश्वर पर छोड़ दें। Number 3, तीसरी बात, God is always at work. परमेश्वर हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, Even if you don't see anything happening, चाहे आप कुछ देख ना रहे होता हुआ। remember God is always at work. आप याद रखें परमेश्वर हमेशा किसी कार्य में लगा है। John 5:17, यूहन्ना 5:17, Jesus says, "My Father is always at His work to this very day, and I am too working." और वो कहता है मेरे जो पिता है वो इस दिन तक भी कार्य कर रहे हैं और मैं भी कार्य कर रहा हूँ। So where is Jesus right now? तो यीशु मसीह अभी कहाँ हैं? What work is He doing? क्या कार्य कर रहे हैं? He's sitting at the right hand of the Father और वो पिता के दाहिने हाथ पे बैठे and हैं interceding for you and me. और वो मध्यस्थता कर रहे हैं आपके और मेरे So लिए। He is at work. तो वो हाँ कार्य में लगे He हैं never stops working. और वो कभी कार्य करने से You नहीं may not रुकते। see anything happening, और शायद आप कुछ होता हुआ ना देखें, but still God is at work. पर परमेश्वर फिर भी कार्य में लगा है। One more thing you must remember, और एक और चीज आपको याद रखने की जरूरत है, the goodness of God. परमेश्वर की भलाई। You know, we always say in some of the churches, they say God is good and people respond all the time, and all the time God is good. और कई We say बार कई this, कलीसिया में ऐसा बोला जाता है गॉड इज गुड और फिर लोग बोलते हैं ऑल द टाइम, और हाँ ये सच है, but we have to believe in the goodness of God. पर क्या आप विश्वास करते हैं उसकी उस भलाई में? Yes, God has a good plan for you. हाँ परमेश्वर की बहुत अच्छी इच्छा है आपके His लिए, plan is not random plan. और उसका योजना बस यूं ही कोई योजना नहीं He है। doesn't get up one day and say, "Oh, I think I should do something. Maybe I should change this and I should do this for." और वो किसी My दिन ये son. सोचता है कि आज मैं ये नहीं ये करके देखता हूँ। No. His plan is already made for you. उसका योजना पहले से बन रखी है And आपके His लिए। plan is not random plan. और उसकी कोई योजना यूं ही नहीं बना दी गई है, Everything is already decided for you. पहले से ही हर चीज आपके लिए चुन ली गई है, And the plans are good. और जो योजना है वो अच्छी है। Well, we may delay God's plan. और शायद हम परमेश्वर की इच्छा पूरी होने में देर कर दें, We may try to block the plans of God. और शायद हम रुकावट लाने की कोशिश करें उसकी योजनाओं But में, God's plan will never change. पर परमेश्वर की योजना कभी नहीं बदलेगी। And lastly, और आखिरी one more thing you have to remember, एक और चीज आपको याद रखनी है that all things, कि हर एक बात, good and bad, अच्छी और बुरी, or let's say good and not so good, और बुरी और जो ज्यादा अच्छी ना हो,
they all work together वो सारी मिलकर साथ में for our good. हमारी भलाई के लिए कार्य So करती है। can failure work towards my good? तो क्या असफलता कार्य कर सकती है मेरी Yes. भलाई के लिए? हाँ। Yes. You don't understand at that time. और शायद आप उस समय ना समझें, By not getting an answer to my prayer, is it good? क्या मेरी प्रार्थना का उत्तर ना मिलना अच्छी बात है? Ultimately, it will be good. अंत में वो आपके लिए अच्छा ही होगा। So that's why Romans 8:28 says, और इसलिए रोमियो 8:28 ये बोलता those who है, love the Lord जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते in हैं their life, उनके जीवन में all things work together for good. हर एक चीज मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। How do we explain that? और हम इसको कैसे समझा सकते हैं? See, there are two things that will happen in our life. ऐसी दो चीजें हैं जो हमारे जीवन में होंगी। Good things, अच्छी चीजें, they are good things. वो अच्छी चीजें हैं, And not so good things, और जो बहुत अच्छी ना हो they are also not really good. और शायद बहुत ही अच्छी ना Like हो। for example, you fall sick, शायद आप बीमार पड़ जाएं, very sick. बहुत ज्यादा It's बीमार, not good. वो अच्छा नहीं है। So how does God work? तो कैसे परमेश्वर कार्य करता है? God will take good things. परमेश्वर अच्छी चीजें लेता है God will also take not so good things, और वो भी चीजें लेता है जो बहुत अच्छी ना हो, and He will put them into a mixer. वो एक बेसन में डालते हैं। You know, mixer we make you use for masala. अच्छा, ओके, मिक्सर। So God will take everything together. तो हर परमेश्वर हर एक चीज लेता है। I give this example many times. और मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ। Just imagine that you invite me at your home और आप मुझे अपने घर में निमंत्रित करें, and you say, you know, Pastor, we have made a nice biryani for you. कि परमेश्वर पासवान में हमने आपके लिए बहुत अच्छी बिरयानी And बनाई you है bring a big plate, और हम बड़ी सी प्लेट लेके आएंगे, but in that plate पर आप उस प्लेट में there's uncooked rice, जो चावल है वो अच्छे से पका नहीं है, there's a chicken piece that is just washed from from the tap and kept it here, और सिर्फ नल से धुला हुआ चिकन का पीस है, and you have a little bit oil, और बस थोड़ा सा तेल है then chili और मिर्ची है and और masala, मसाले हैं salt. और नमक है, What do you want for biryani? What do you use for biryani? और जो भी आप इस्तेमाल करते हैं बिरयानी All के लिए, these things are kept in the plate. और वो सारी चीजें एक प्लेट में सजी हुई And हैं, you say, okay, this is a nice biryani prepared for you. और आप कहेंगे ये लीजिए आपके लिए बहुत अच्छी बिरयानी हमने You तैयार can't की। eat that. आप नहीं खा सकते वो, You have to bring everything together. आपको हर एक चीज को साथ लेकर आना Then होगा cook that. और फिर उसको पकाना होगा, Then it becomes a nice biryani. फिर वो एक अच्छी बिरयानी That's how God works. बनती। और ऐसे ही परमेश्वर कार्य One करता है, hurt here and there, और एक छोटी मोटी चोट यहाँ और वहाँ, one failure here and और there एक छोटी सफलता यहाँ और वहाँ, doesn't really matter. कोई फर्क नहीं Because पड़ता। everything finally तो क्योंकि हर एक चीज मिलने के is बाद going to work together for वो good. आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगी। So as we come to the closure, और जब हम अंत में आते हैं, let me give you a few examples मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता and हूँ then I'll close. और फिर मैं अंत करूंगा। 5,000 people were sitting 5,000 लोग बैठे थे and they had no food to eat. और उनके पास कोई भोजन नहीं था खाने को, And Philip is right in front of Jesus. और फिलिप परमेश्वर के ठीक सामने है, And Jesus says, why should they go home? और वो कहते परमेश्वर कहते इनको क्यों ऐसे जाने दो, You feed them. तुम उन्हें खिलाओ। And John chapter 6 verse 6 says, because he knew what he was already going to do, he asked Philip, यूहन्ना 6 don't और send the people. 6 और 6 कहता है कि वो पहले से ही जानता था वो क्या करने वाला है। वो फिलिप से कहता है कि इन्हें नहीं भेजना। So one thing you must remember, तो आप एक चीज हमेशा याद रखें, God already knows. परमेश्वर पहले से ही जानता है, There's nothing that happens in your life that surprises him. और ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं हो सकता जिससे परमेश्वर अचंभित हो। So 5,000 plus 5,000, probably maybe 15,000 people had food to eat. और कम से कम 10 से 15,000 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम हुआ। Jesus asked this question to Philip, और परमेश्वर ने ये सवाल फिलिप से पूछा, but he already had a plan. पर उसके पास पहले से ही एक योजना थी। He already had a plan. उसके पास पहले से एक योजना He थी, knew already what he was going to do. उसको पता था वो क्या करने वाला है। Lazarus लाजरस was very sick. बहुत बीमार था, Jesus knew that he is going to die. और यीशु मसीह जानता था कि वो मरने वाला है, Jesus also knew that he is going to raise him. और परमेश्वर को ये भी पता था कि वो उसे जी भी उठा देंगे, That's why he delayed. इसलिए वो देर से आए। The only
the only people who did not know this, और सिर्फ वो लोग जिनको ये नहीं पता था Martha and Mary. वो थी मार्था और मरियम। That's what happens to you and me. और ऐसा ही आपके और मेरे साथ होता है। God has a plan. परमेश्वर की एक योजना होती है, Like Martha and Mary, और मार्था और मरियम की we तरह, don't know the plan. और हमें नहीं पता क्या योजना होगी। I wish Martha and Mary knew that. और मैं काश मैं सोचता हूँ कि काश मार्था और मरियम को वो पता होता, Because finally when Jesus arrived at the scene, क्योंकि अंत में जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे, Bible says Jesus wept. यीशु मसीह रोए, He was so sad in his heart. और वो अपने हृदय में इतने दुखित थे But even Jesus had to weep. कि यीशु मसीह को भी रोना पड़ गया। And Martha and Mary was definitely crying. और हाँ, मार्था और मरियम जरूर रो रहे होंगे, But they had no idea. पर उन्हें कोई आइडिया नहीं था Why is he late? कि क्यों वो देर से आए। Is he not our friend? क्या वो हमारे मित्र नहीं? Is he not healed so many people? क्या उसने इतने सारे लोगों को चंगा नहीं किया? Why wouldn't he come quickly? तो वो जल्दी से क्यों नहीं आए? Why no answer to my prayer? क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? Why is he delaying? क्यों परमेश्वर देर कर He रहा है? doesn't love me? क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करता? Did he not come to our house many times? क्या वो कई बार हमारे घर नहीं आया? Did we not serve him? क्या हमने उसकी सेवा नहीं की? Yes, we did all that. और हाँ, हमने ये सब किया, Yet he allowed my brother to be killed. पर तब भी उसने ये अनुमति दी कि मेरे भाई की मृत्यु हो जाए, My brother to die. कि उन्हें मेरे भाई को मरने दिया। But Jesus already knew the plan. पर यीशु पहले से ही योजना को जानते थे। When Israelites left Egypt, जब इजरायलियों ने मिस्र छोड़ा, God said, let's not take them through a shortcut तो ये परमेश्वर ने सोचा कि इनको शॉर्टकट से नहीं ले जाते because that हैं, is a land of Philistines. क्योंकि वहाँ पे फिलिस्तियों की एक भूमि है, And because Israelites were in the slavery for 430 years, और क्योंकि इजरायली लोग तो 430 साल के लिए गुलामी में थे, they were not trained to fight. तो उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी लड़ने की। So if at all battle takes place, तो अगर वो युद्ध होता, God said, परमेश्वर ने they कहा, will come back to Egypt वो वापस मिस्र आएंगे and will never go with Moses. और वो कभी मूसा के साथ वापस नहीं So he जाएंगे। said, let's take them through a long cut. तो उन्होंने सोचा कि अब हम इन्हें एक लंबे रास्ते से ले जाते हैं, Finally, they came to the Red Sea. और फिर अंत में वो लाल समुद्र पे आए। That was God's plan. वो परमेश्वर की इच्छा थी, But what Israelite thought? पर क्या इजरायलियों ने सोचा? They took the stones in their hand. उन्होंने पत्थर अपने हाथों में लिए They wanted to kill Moses. और वो मूसा को मार डालना चाहते थे Why did you bring us here? कि तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया? To die? मरने के लिए? There were no graves in Egypt. और क्या वहाँ पे क्या कहते हैं ग्रेव नहीं थी क्या मिस्र में? What? What did you do to us, Moses? कि तूने हमारे साथ ये क्या किया मूसा? Because we can't run forward और क्योंकि हम ना आगे भाग सकते हैं and Pharaoh is chasing us. और फिरौन हमारा पीछा कर रहा है, They are going to kill us. वो हमें मार डालेंगे, If we run into the sea, we are going to die. और अगर हम समुद्र में चले गए तब भी हम मर जाएंगे। What they did not know, पर उन्हें नहीं पता था that God did not bring them to the long cut कि परमेश्वर उन्हें लॉन्ग कट के साथ इसलिए नहीं लेके so आया that he will take them safely out. कि वो उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर ले And जाए, when Pharaoh and his army will do the same thing, और जब फिरौन और उसकी सेना वही चीज करने की कोशिश he करेगी, will kill all of them. वो उन सबको मार डालेगा। So what was the plan of God? तो क्या था परमेश्वर की योजना? Not to harm Israelites, कि जो इजरायली हैं उनको कोई चोट ना पहुंचे, to save them. कि उन्हें बचा लिया But जाए। at that point, और उस समय in that place, उस जगह पे they did not understand. वो ये सब नहीं समझ पाए, That is what happens with God's plan. और यही होता है परमेश्वर की योजना के साथ। Job had no idea. अय्यूब को कोई पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था What's going on in heaven? कि क्या हो रहा है स्वर्ग में, Hey, Satan is coming and standing with the angels there. और वहाँ पे शत्रु जो है आके वहाँ फरिश्तों के साथ खड़ा है, And they're discussing about this man Job. और वो बात कर रहे हैं इस अय्यूब नाम के व्यक्ति के बारे में। What is going to happen? तो क्या होने वाला है? Job had no idea. अय्यूब को कुछ आइडिया नहीं था, But what a suffering Job had to go through. पर वो अय्यूब को किस कष्ट से गुजरना पड़ा। But he had no idea how much he will be rewarded. Not one time, 2 times, but 4 times पर more. उसने नहीं सोचा था उसको कितना लौटाया जाएगा, ना कि 1 गुना बल्कि 4 गुना। Poor Job.
बेचारा अय्यूब। That's what happens with you and me. और ऐसा ही आपके और मेरे साथ होता We है। go through suffering, हम बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं, failures, हम असफलता से गुजरते हैं, difficult times, मुश्किल समय से and गुजरते we हैं, are confused. और अपने मन में हम बहुत ही कंफ्यूज Why? होते हैं। Why? क्यों ये मेरे साथ हो रहा है? Where is God? परमेश्वर यहाँ कहाँ है? What about His plan? उसकी योजना का क्या? He says, I have good plans for you, वो कहता है मेरी अच्छी योजना है तुम्हारे plans to लिए, prosper, not to harm you, कि जिससे तुम उन्नत हो और ना कि तुम्हें चोट and a पहुंचाने की, future and a hope. और एक आशा और एक भविष्य की। Where is the hope? तो आशा है कहाँ? Where is the future? कहाँ है भविष्य? We don't understand at that time. और हम उस समय नहीं समझते। My daughter was small, जब मेरी बेटी छोटी थी, and I still remember the first day I took her to the school. और मुझे याद है वो पहला दिन जब मैं उसे स्कूल लेकर गया, A father and a daughter relationship, you can understand. और एक पिता और एक बेटी का रिश्ता आप समझ She सकते हैं। never wanted to go to school, वो कभी स्कूल नहीं जाना चाहती थी, but that day I left her hand और पर उस दिन मैंने उनका हाथ छोड़ा into the teacher's hand, और टीचर के हाथ में दिया, and I didn't realize that I was standing there. और मैंने सोचा भी नहीं मैं वहां पे खड़ा था, Everybody left, सब चले गए, and I didn't even realize that I was the only one person standing there. और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं ही अकेला व्यक्ति वहां खड़ा रह गया। Finally, the watchman came to me, और अंत में वॉचमैन मेरे पास आए and he shook his hand like this. और उन्होंने अपने हाथ से ऐसे मुझे दिखाया, Said, "Are you not going home?" तो उन्हें पूछा कि आप घर नहीं जाना चाह रहे? Almost I came to my senses, और मैं वापस अपने होश में आया, and I was almost crying in my और heart. मैं रोने ही लगा था बस। I cannot forget the way she went inside, and she was so much crying. और मैं भूल नहीं सकता वो कैसे अंदर गई, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। Today she is a psychologist. और आज वो एक साइकोलॉजिस्ट है, She has been working with TCS for last 10 years. और वो TCS के साथ कार्य कर रही है पिछले 10 सालों से। She earned her master's from Seattle Pacific University in Washington. और उन्होंने अपना मास्टर सियाटल पैस यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन से किया। Just imagine if I did not leave her hand, आप सोचिए शायद मैंने अगर उसका हाथ ना छोड़ा होता, even though it was so difficult. जबकि वो कितना मुश्किल था। Sometimes God will leave your hand. और You कई know बार that? परमेश्वर आपका हाथ ऐसे छोड़ He देगा, will just allow you to go through that process. और वो अनुमति देगा कि आप उस प्रतिक्रिया से गुजरें, And He will weep. और वो शायद रोएगा भी। Jesus cried. यीशु मसीह रोए He felt that love for him. क्योंकि उसने वो प्रेम महसूस किया उसके He लिए। saw that his friend is dead. उसने देखा कि उसके दोस्त की मृत्यु हो गई है, He could feel the consequences of sin. और शायद वो महसूस कर सकते थे कि क्या परिणाम था उसके The पापों का, separation that death brings and the sin brings to people. और वो जो विभाजित करना है जो पाप और मृत्यु लेकर आता है लोगों But के he बीच। had allowed Lazarus to die. पर उसने रहने दिया कि मृत्यु हो लाजरस की। That's what will happen to you and me. और शायद आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा So हो। friends, God knows everything. तो आप जानते हैं परमेश्वर हर एक बात जानता He है। knows when you are sick, वो जानते हैं कब आप बीमार हैं, when you are discouraged, कब आप निराश हैं, when things are impossible for you, कब चीज़ें असंभव हैं आपके लिए, when you are down and out, जब आप बहुत ही ज़्यादा थके और गिरे हों, when you are messed up, जब आपने सब कुछ खराब हो चुका हो when जीवन your में, prayers are not answered. जब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिल रहा He हो, knows your name. वो आपके नाम को जानता He है, also knows how many hair on your head. वो जानता है उन बालों की You know गिनती that? जो आपके सर पे हैं। आमीन। Yeah. Nobody can tell. कोई ये नहीं बता सकता, But he says, I know. पर वो जानता है, So he knows what's going on in your heart. और वो जानता है आपके हृदय में क्या चल रहा है, He knows the words you speak. वो जानता है वो शब्द जो आप कहने वाले He हो, knows what you need. उसको पता है किस चीज़ की आपको ज़रूरत He है। knows your past, your present, and your future. वो आपके भूतकाल को, आपके अभी के समय को, आपके आने वाले भविष्य को He जानता है। knows the number of your days. वो जानता है कि आप कितने दिन जीवित रहोगे। He knows the stars by their वो name. तारागण को उनके नाम से बुलाता है। How many stars? कितने तारे हैं? Millions? बहुत, Billions? Trillions? अरबों, लाखों, करोड़ों, I don't know. Nobody can count. शायद कोई गिन भी नहीं सकता, Every star is known to him. पर हर एक तारे के बारे में वो जानता है। So friends, God has a good plan for you. तो दोस्तों, परमेश्वर का एक अच्छी योजना है आपके लिए, You have to just trust in him. और आपको उस पर बस भरोसा रखने की जरूरत है। His plans are not random. They are good. और वो यूं ही योजना ही नहीं बना देता, उसकी अच्छी योजनाएं हैं। No matter what you're going through right now, और चाहे आप किसी चीज से क्यों ना गुजर रहे हो इस समय, God sees you as his child.
परमेश्वर आपको अपनी संतान की तरह देखता है। He has a hope for you, उसका एक आशा है आपके लिए, and He has a future for वो you. आपके लिए एक भविष्य को रखता है। Let me tell you one story and then I'll close. और मैं आपको एक कहानी बता के एक अंत करूँगा। You know, I am a fan of cricket. और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्रिकेट का, I love cricket. और मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट। So on a one given Sunday, we came back from the church, और एक रविवार हम कलीसिया से वापस आए, and as usual, you know, Sunday lunch is always late, और आप हमेशा जानते हैं संडे को लंच लेट ही मिलता है, particularly in a pastor's house. ज़्यादातर पासबान के घर में। So she was into kitchen and getting food ready. और मेरी पत्नी किचन में खाना बना रही थी, I looked at the newspaper, और मैंने अखबार खोल के देखा, and so I think some match was going on, और शायद कोई मैच चल रहा था उस समय। and so I took the remote and I just switched on the TV, और मैंने रिमोट लेके टीवी खोला, and there it was, India and Pakistan. वहाँ मैंने देखा भारत और पाकिस्तान का मैच। People love this match. और परमेश्वर लोगों को बहुत ही पसंद है ये I got मैच, excited और मैं बहुत उत्साहित हो गया, and I sat on the sofa. और मैं सोफा पे बैठा। But sad news, पर दुखद बात, the first over that I was watching, Tendulkar got out. और पहला ओवर जो मैं देख रहा था तेंदुलकर आउट हो गए। And you know, men have this habit of making a commentary. और पुरुषों के अंदर एक ये काबिलियत होती है कि वो कमेंट्री You are करते हैं, listening to the commentary, और वो सिर्फ सुनते नहीं है but you are commentary, also making commentary. पर हम वो कमेंट्री दे भी रहे होते हैं। You may not be very expert in cricket, और अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट नहीं होंगे क्रिकेट में, but still you want to make a commentary. पर फिर भी आप कमेंट्री देना Why did he चाहेंगे get out? कि क्यों ये हार गया, He should not have played this ball like this. और उसने ऐसे इस बॉल के साथ नहीं खेलना So चाहिए I'm था। telling Tendulkar. तो मैं तेंदुलकर को बता रहा हूँ, And you know, the second wicket fell down. और फिर दूसरा विकेट भी गिर गया, And I was under tension. और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया। If you're a fan of cricket, you know that. अगर आप क्रिकेट के फैन हैं आप समझेंगे My इस बात blood pressure is going up. को। मेरा बीपी बढ़ रहा है, I know India is going to lose the match. और मुझे पता था इंडिया हार On जाएगी the मैच। side sofa, और मेरे साइड जो सोफा था, my young son was sitting there, और मेरा बेटा जो छोटा बेटा है वो and he's बैठा, watching me. और वो मुझे देख रहा है, He's smiling also. और वो बहुत मुस्कुरा रहा है, Finally, he said, "Papa, what happened?" और वो अंत में कहता है पिताजी क्या हुआ। So I'm telling him, "Baba, we are going to lose the match और मैंने कहा अरे बेटा हम मैच हारने वाले हैं, because it is with Pakistan. You cannot lose the match." और क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ है हम नहीं हार सकते। He looked at me और उसने मेरी ओर देखा, and he said two things. और उसने दो चीजें बोली। He said, "India has won this match." उसने कहा कि भारत ने ये मैच जीत लिया है। I said, "How do you know?" और आपको कैसे पता, मैंने He पूछा। said, "You are watching replay." उसने कहा आप पुराना मैच देख रहे हो। Then I looked in the corner, there was a replay. और फिर मैंने साइड में देखा रिप्ले लिखा था। He said, "India has already won this match." उसने कहा कि भारत पहले से ही ये मैच जीत चुका And है, that became a spiritual lesson for me. और वो मेरे लिए एक आत्मिक शिक्षा बन गई। Jesus has already won the match for you. और यीशु मसीह ने पहले से आपके लिए मैच जीत लिया है, For all of you. सब आप सब के लिए। The result is declared. और जो परिणाम है वो पहले से घोषित हो Satan is चुका है, defeated. और जो शत्रु है वो पहले ही हार चुका है, And Jesus has conquered sin and death. और परमेश्वर ने उस मृत्यु और पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर Now, ली है। in the meantime, पर उस बीच के समय में some wickets will fall. और कुछ विकेट गिरेंगे, And it's okay. और वो ठीक है, Somebody will be clean bowled. और कोई क्लीन बॉल कर देगा, Somebody will be catch out. और कोई कैच आउट हो जाएगा, Somebody will run out. कोई रन आउट हो जाएगा, Somebody will hit the stump. और कैच कोई स्टंप पे मार देगा, The batsmen are going to be out. और शायद बैट्समैन भी असफल रह जाए। But the result is already declared. पर जो परिणाम है वो पहले से घोषित हो चुका है। God has a plan for you. परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए, Plans to prosper you, वो है आपको उन्नत करने की, not to harm you. आपको चोट पहुंचाने के Plan to लिए, give you a hope and future. कि वो आपको एक आशा और एक भविष्य दे सके।